ज्वाइन नहीं किए हैं, so everyone put a we'll wait for one more minute. Let's see how many of them have joined the class. Very few, बहुत कम बच्चे ज्वाइन किए हैं अभी तक. So all are ready for the class? Yes, after Diwali? Yes, ma'am. Very good. So I think last week we had started that chapter 8, na? Yes, fire, friend and foe. Yes, ma'am. Yes, we couldn't complete that, ना? तो we will इतना गैप हो जाने की वजह से today we will start again, okay? From the beginning we will read that same chapter, chapter 8. If you have your book, you can open your book, chapter 8, and if you don't have, just you follow the PDF when I will share, okay? Right? बच्चे बहुत कम बच्चे हैं. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटे. So shall we begin the class? Only बहुत कम बच्चे ज्वाइन किए हैं अभी तक, और एक 1 more minute विल वेट फॉर देम, है ना? और 1 मिनट वेट करते हैं उनके लिए. डोंट लीव द क्लास, ओके? बहुत कम बच्चे ज्वाइन किए हैं. ओके बच्चे, म्यूट कर लो अपने आप को. एवरीवन, सारे बच्चे म्यूट कर लो अपने आप को. Good evening, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा. Okay, so we'll see chapter 8, fire, friend and foe. So as we last week we had discussed about this fire, है ना? फायर के बारे हम डिस्कस किए थे, isn't it? फायर इज बोथ फ्रेंड एंड एनिमी. हमने डिस्कस Good यही किए morning, थे. ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा. हमने चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं ना. चैप्टर 8, फायर, फ्रेंड एंड फो. फ्रेंड एंड फो. फो मीन्स एनिमी. So we had discussed about this chapter that fire is both friend and enemy, useful and dangerous also. याद है कि भूल गए? Yes, याद है ना? Yes, हाँ. ma'am. तो फायर के लिए हमें लास्ट वीक आई हैड आस्क्ड यू, सम ऑफ यू, दैट हाउ डू यू यूज योर फायर, है ना? फायर को आप कैसे यूज करते हो, हाउ इट इज यूजफुल और हाउ इट इज डेंजरस, है ना? सो व्हेन दैट फायर बिकम्स वाइल्ड then it is very dangerous, and when it is for the cooking or to warm up the room or heat up the water and all that, then it is like our friend, है ना? यही बोले थे ना. So what is fire? Fire क्या होता है ना? In ancient time, you will see that in history
that ancient time people, they do not know how to use, they did not Good know how to morning, use. ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा। रिया म्यूट कर दो बेटा, रिया म्यूट करो, रिया प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ, तो ये जो एंशियंट टाइम पे दे डिड नॉट नो हाउ टू यूज द फायर, है ना। उनको तो पता तो था कि ये मतलब पत्थर पत्थर को घिसने से वहां से आग निकलती है ना, बट दे डू नॉट नो हाउ टू यूज, उनको पता नहीं था। इन हिस्ट्री यू हैव स्टडीड ऑलरेडी, है ना, इनके बारे में, एंशियंट टाइम के बारे में पढ़े होंगे ना बच्चे, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, Okay. yes, ma'am. So now again we'll see how it is useful for our daily life and how it is dangerous when it becomes wild. Wild मतलब बहुत जंगली जैसा, जैसे कहीं फायर लग जाता है, then it becomes very very wild fire when मतलब if fuels are there, oxygens are there closer to them, closer to it, then fire it becomes wild, है ना। तो we'll study today, I'll share you that PDF, same PDF I think we had studied, and little bit we had studied, I think so. So today we'll begin again this chapter and we'll try to cover it. Okay, Sonali, can you read please? Fire, friend and foe from the beginning. Early man did not know that fire was, but he must have seen the damage it could cause. But he must have seen the damage it could cause. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. Fire was powerful and dangerous, and he was frightened. Okay, wait, हाँ, म्यूट कर लो बच्चे, किसी की आवाज बीच में आ रही है। So early man did not know what fire was. As you know, in ancient time, है ना, in history you have read that early man means जो पूर्वज थे, उन लोग फायर के बारे में नहीं जानते थे, है ना। They did not know what fire was, but the must have seen but he must have seen the damage it could cause. डैमेज मतलब उनका नुकसान देखे थे, है ना। फायर से क्या क्या नुकसान होता है ना। डैमेज होता है, घर जल जाती है, बिल्डिंग जल जाती है ना। सो ऑल दैट दे हैड सीन। फायर जब फॉरेस्ट में लगा, फायर पुट कर देते हैं तो क्या होता है, पूरा फॉरेस्ट ही जल जाता है ना। वो जितने भी पेड़ पौधा रहता है सारे जल के खत्म हो जाता है। दैट दे हैड सीन but they did not know how to use. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. तो इन लोग पहले देखे थे, दिस इज नेचुरल कैलामिटीज, है ना। नेचुरल कैलामिटीज जो नेचर का कैलामिटीज है, वोल्केनो इरेप्शन होता है, यू हैव रेड इन ज्योग्राफी, है ना। वोल्केनो इरेप्शन जब लैवाबो पूरा ये लिक्विड जैसा बाहर आता है, आग लग जाती है ना। एंड लाइटनिंग, लाइटनिंग मीन्स तो थंडरिंग एंड लाइटनिंग होता है बारिश के टाइम पे। ऑल दे हैड सीन एंड फायर वाज पावरफुल एंड डेंजरस। बेटा किसी के माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लो। किसी के माइक ऑन है, प्लीज चेक इट। हाँ, सो फायर वाज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वाज फ्राइटेंड। तो उनको यही पता था एंशिएंट टाइम में, अर्ली मैन को, कि फायर इज पावरफुल, बहुत पावर है फायर में, एंड डेंजरस भी है। इसीलिए मैम अर्ली मैन जो थे वो फायर से डरते थे। हाँ बोलो बेटा। मैम मैम फिर से बोलो समझा दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गई थी। क्या हुआ। मैम फिर से समझा दीजिए। ओके ठीक है, तो आप म्यूट कर लो बेटा। हाँ हाँ बेटा प्लीज म्यूट कर लो अपने आप से, वापस समझा। ठीक। अर्ली मैन डिड नॉट नो व्हाट फायर वाज। देखो जैसे आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे
कि early men जो अपना मैम पूर्वज जो आपकी थे आवाज ढंग से नहीं आ ना, रही है। उन लोग तो वो पूर्वज जो थे उन लोग क्या थे, उनको फायर के बारे में पता तो था, बट दे डिड नॉट नो व्हाट फायर वाज। उन लोग देखे थे लाइटनिंग और जो डैमेज कॉज होता था, जैसे डैमेज मतलब जो नुकसान होता था फायर के वजह से, बिल्डिंग या हाउसेस या फॉरेस्ट जलने का देखे थे इन लोग, है ना, जलता हुआ सब कुछ देखे थे, बट दे डिड नॉट नो हाउ टू यूज। ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वोल्केनोस। वोल्केनोस जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, लाभाबो के बारे में पढ़े होंगे, है ना, तो ये आग जैसा यस मैम। धधकते हुआ कुछ निकलता है ना, लिक्विड चीज। long before he began to use fire himself। लेकिन ये बहुत टाइम तक इनको फायर का यूज नहीं, मतलब पता नहीं था हाउ फायर कैन बी यूजफुल। ओनली दे केम टू नो दैट डेंजरस ऑफ द फायर एंड फायर वाज पावरफुल एंड डेंजरस। वो वही सोचते थे कि फायर जो है वो बहुत पावरफुल है एज वेल एज डेंजरस भी है। यदि फायर उन लोग यूज करेंगे तो खुद ही जल जाएंगे, है ना, ये डर था उनका। एंड ही वॉज फ्राइटेंड, इसीलिए वो डरते थे। लाइटनिंग, लाइटनिंग क्या होता है, जो बारिश के टाइम पे बिजली कड़कती है उस टाइम लाइटनिंग होती है ना, लाइटनिंग होने के बाद बिजली कड़कती है। सो ऑल दैट दे हैड सीन बट दे डिड नॉट नो हाउ टू यूज द फायर। नेक्स्ट, फायर में सोनाली, वेयर आर यू? Ma'am, can I read? मैम कैन आई रीड? हाँ, रीड। Fire ओके, may have करण कुणाल में puzzled. से कौन पढ़ रहे हो, पढ़ो। Fire may have puzzled early man, but we know that fire is a result of chemical reaction. When the oxygen in the air combined with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. Energy in the form of heat and light is released in this process. This is what we call fire. Three वेट, things हाँ, are देख, needed. रुको बेटा। Fire may have puzzled early man, but we now know that fire is the result of a chemical reaction। देखो कि अर्ली मैन को पजल्ड, पजल मतलब वो चौंकने जैसा है ना। फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन बट वी नाउ नो व्हाट फायर इज द रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जो है कि फायर कब लगता है हमारे घर पे या तो कहीं भी लग जाती है फायर ना, जब हमारा केमिकल रिएक्शन होता है तब। जैसे कि ऑक्सीजन है ना, व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल। कार्बन एंड हाइड्रोजन जब फ्यूल में मिक्स हो जाता है इन अ फ्यूल, देन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपको पता है जैसे कि आप लोग लाइब्रेरी में भी जाते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, है ना, बहुत सारी चीजों को क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो या नहीं करते हो, करते हो, है ना। सो Yes, यू ma'am. नो कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल, ठीक है, तो जब ये मिक्स हो जाते हैं तो ये केमिकल रिएक्शन होता है, और उस केमिकल रिएक्शन वजह से ही आपको वहां पे एनर्जी और हीट, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा तो हीट होगा, हीट होगा तो क्या होगा, फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। तो आपको वहां पे केमिकल रिएक्शन होगा, क्या क्या कंबाइन होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल, है ना, फ्यूल में कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों मिक्स होने के बाद फ्यूल में डालते हैं तो ये केमिकल रिएक्शन होता है। और उसी केमिकल रिएक्शन से क्या है, जो एनर्जी फॉर्म होता है, जो एनर्जी है हीट एंड लाइट, बहुत गर्म हो जाता है और लाइट प्रोड्यूस करता है और वो रिलीज करता है इन दिस प्रोसेस। तो वो लाइट और हीट दोनों मिल जाते हैं तो फायर मतलब रिलीज होता है वहां से, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल फायर, और इसी को हम बोलते हैं फायर। तो केमिकल रिएक्शन होता है और
एनर्जी फॉर्म करता है इन फॉर्म ऑफ हीट लाइट, ठीक है, एंड इज रिलीज इन दिस प्रोसेस दैट इज कॉल्ड फायर। समझ में आया? किसका किसका रिएक्शन होता मैम है आपकी पता हो आवाज गया क्लियर? अभी? Yes, ma'am. ठीक है, ओके नेक्स्ट पढ़ो। मैम आपकी आवाज Ma'am, क्लियर नहीं आ रही, ma'am, कट के आ रही है। 3 things are needed to make fire: fuel, oxygen, and heat. Wood, coal, cooking gas, and petroleum are some example of fuel. Oxygen comes from the air. That is why when you blow on smoldering paper, it often bursts into flame. The third thing needed to make fire is heat. Fuel and oxygen do not make fire by themselves, or else a newspaper or a stick lying in open would catch fire on its own. To burn a piece of paper or wood, we heat it before it catches fire. We generally do it with a lighted match. match. Every fuel has a particular temperature at which it begins to burn. This temperature is called flash point or kindly temperature of the fuel. ओके वेट, हाँ वेट, अभी मेरी आवाज क्लियर है बेटे? है अभी क्लियर? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है। सो 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। कितने चीज चाहिए हमको फायर मेक करने के लिए? 3 थिंग्स, है ना? फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। ये 3 चीज हमको जरूरत है जब फायर पुट करने के लिए, मतलब फायर मेक करने के लिए। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर: फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। Wood, coal, cooking gas and petrol are some example of fuel. तो आपको फ्यूल, जैसे कि फ्यूल में एग्जाम्पल देना है, तो इन साइंस ऑल्सो यू कैन राइट ऑल दिस, ओके? वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर। तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? एयर से, है ना? दैट इज वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मॉल्डरिंग पेपर, स्मॉल्डरिंग पेपर मतलब एक पेपर जो होता है, मे बी अभी तक तो आप लोग यदि स्कूल ओपन होता तो यू वुड हैव बीन एक्सपेरिमेंट करे होते होंगे। आई थिंक 7th में ही है ये वाले चैप्टर आपके साइंस में। तो ये जो स्मॉल्डरिंग पेपर जो है उनपे एक ग्लास रख के, ग्लास मतलब यू नो ना, जो साइंस साइंस के जो साइंस ये में आप लोग यूज करते हैं ना ग्लासेस, जो कि डिफरेंट डिफरेंट ग्लासेस यूज करते हो ना। हाँ तो Yes, मम्मी से ma'am. वो और एक्सपेरिमेंट करने के, जैसे कि मैं एक बार देखी थी कि कोई आप लोग के टीचर पढ़ा रहे थे ना साइंस में, तो उन लोग एक स्मॉल्डरिंग पेपर को रखे थे और उन लोग हीट अप कर रहे थे, है ना? स्मॉल्डरिंग पेपर बहुत जल्दी से वो क्या करता था, फायर कैचअप करता है ना? सनलाइट के द्वारा वो अपने Yes, आप ma'am. वहां पे क्या होता है, जल जाता है। हाँ, तो इट ऑफन बस्ट इनटू फ्लेम। फ्लेम मतलब वो आग जल जाती है वहां पे, है ना? The third thing needed to make fire is heat. फर्स्ट है आपका क्या है? पहला पॉइंट क्या है? क्या है पहला पॉइंट? Ma'am, flame. Ma'am, fuel. याद है? फ्यूल। और दूसरा चीज क्या है? Oxygen and heat. Oxygen. ऑक्सीजन। एंड थर्ड थिंग है Heat. आपके हीट, है ना? ध्यान ध्यान रखना बेटा, फ्यूल है, ऑक्सीजन है और हीट है, ठीक है? Yes. तो फ्यूल, तो ये थर्ड थिंग नीडेड, म्यूट कर लो बेटा, किसी की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है ना? थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट। हीट की वजह से फायर वहां पे लग सकता है। सो फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स। यदि आप लोग फ्यूल और ऑक्सीजन को भी इकट्ठा करोगे, टुगेदर करोगे, तो भी फायर नहीं लगेगी। यू कैनॉट मेक फायर अनटिल अनलेस
देयर शुड बी हीट। जब तक वहां पे हीट नहीं होगा वो फायर कैचअप नहीं करेगा। ओके, और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन। लेकिन यहाँ पे देखोगे कि यदि आप न्यूज़पेपर को भी रखोगे विदाउट हीट, विदाउट ऑक्सीजन, देन यू कैनॉट पुट फायर इन दैट न्यूज़पेपर ऑल्सो, है ना। इसीलिए आप लोग देखे होंगे ना मैच स्टिक, देखे हैं मैच बॉक्स फायर मेक करने Yes, Yes, के ma'am. लिए। Yes, हाँ, ma'am. तो जब उनको आप एक ही बार या 2 बार घिसोगे तभी वहां से फायर निकलती है ना, या वो Yes, अपने आप ma'am. निकल जाता है। Yes, ma'am. हाँ, मैच बॉक्स में जब आप उसको थोड़ा सा रब करोगे तभी वो फायर निकलेगी वहां से, अदरवाइज यू कैन नॉट मेक फायर, बिकॉज वहां पे जब तक हीट नहीं होगा तब तक वो फायर नहीं निकलता है ना। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, तो बर्न करने के लिए पेपर या कुछ चीज वुड को भी बर्न करने के लिए आपके वहाँ क्या है, हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल की जरूरत होता है। फ्यूल तो यू के मतलब मैच स्टिक में आप देखोगे वहां पे आप थोड़ा सा रब करोगे देन ओनली दैट फायर विल कम अप। वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर, वी जनरली डू इट विथ अ लाइटेड मैच। अभी बता रही थी ना, जो मैच स्टिक होता है उसके थोड़ा सा रब करोगे तभी वहां से लाइट निकलेगी और वहां से फायर प्रोड्यूस होगा। एवरी फ्यूल हैज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। बेटा म्यूट कर लो, बच्चे म्यूट कर लो, किसी के से टीवी की आवाज आ रही है प्लीज। We generally do it with a lighted match. Every fuel has a, this line is very important, every fuel has a particular temperature at which it begins to burn. This temperature is called the flash point or kindling temperature of the fuel. तो देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि एवरी फ्यूल, जितने भी फ्यूल होता है उनका पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, किसी का ज़्यादा किसी का कम, ऐसा मतलब टेम्परेचर होता है। कोई चीज़ में जल्दी फायर कैचअप करता है और किसी किसी चीज़ में बहुत लेट से फायर कैचअप होता है ना। तो यहाँ पे एवरी फ्यूल हैज अ पर्टिकुलर Yes, ma'am. टेम्परेचर at which it begins to burn. To burn means to catch the fire. This temperature is called the flash point. तो क्वेश्चन होगा वहां पे कि व्हाट इज फ्लैश पॉइंट, तो आपको यही आंसर लिखना पड़ेगा। एवरी फ्यूल हैज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट। ओके, और kindling temperature of the fuel. Next, It is is sometimes sometimes said that fire is a good servant but a bad master. It's only mean that fire is very useful as long as keep under control. For instance, we instance, for for instance, instance we use it to cook our food, warm our home in the winter, and to generate electricity. But on the other hand, if fire get out of control, it it can be very dangerous. Each year, thousands of homes and shops are damaged by fire. Vast area of forest are also destroyed and hundreds of people are killed or injured. Just as three things are needed to start a fire, there are three main ways in which a fire can be put out. In each one, one of the three things needed to burning it is take away. wait, रुको. It is sometimes said that fire is a good servant but a bad master. तो कभी कभी हम फर्स्ट इन द इंट्रोडक्शन ही डिस्कस किए थे कि फायर इज ए फ्रेंड एज वेल एज एनिमी, है ना। इन द बिगिनिंग ओनली वी हैड सेड कि ये जी मैम। फ्रेंड भी हो सकता है, एनिमी भी हो सकता है। क्यों? जब ये अच्छा से हमारे जैसे कि
फायर इज गुड सर्वेंट। जैसे कि सर्वेंट बोलने से वो हमारी सेवा करता है ना। जैसे कि इट हेल्प्स अस टू कुक फूड, वार्म अप आवर रूम्स इन विंटर एंड हीट अप द वाटर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। तो इस चीजों के लिए ये गुड सर्वेंट है। बट अ बैड मास्टर ऑल्सो, यू सी, जब कहीं पे फायर ज्यादा हो जाता है तो घर जल जाती है ना, बहुत सारे फैक्ट्रीज जल जाती है। इलेक्ट्रिसिटी के वजह से कहीं पे सर्किट ऐसा हो जाता है जो कि आपके मतलब क्या है, पूरे बिल्डिंग जल सकती है ना। थोड़ी सी लापरवाही के वजह से पूरे नष्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हम फायर को बोलेंगे बैड मास्टर। समझ में आया? गुड सर्वेंट तो होता है जो सेवा करता है, जैसे यूजफुल फॉर कुकिंग फूड, वार्म अप द रूम, प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट अप द वाटर, वो सारे के लिए गुड सर्वेंट है। लेकिन जब ये वाइल्ड फायर लग जाता है तो ये फायर जो है वो बैड मास्टर बन जाता है। एज यू नो, जब टीचर को गुस्सा आ जाता है तो क्या होता है? गुस्सा आने के बाद, है ना, यस, बैड मास्टर। जैसे कि आप बोलोगे किसी को समझ में नहीं आता है ना, इन दैट टाइम। और जब टीचर बहुत अच्छे हैं तो आप लोग को भी क्या लगता है? यस, वी आर फ्रेंडली विथ टीचर्स, है ना, ऐसा। और Yes, जब ma'am. गुस्सा आते हैं तो क्या होता है? सारे बच्चे पूरा चुपचाप बैठ जाते क्लास में, है ना। एक बार टीचर को गुस्सा आ गया तो सारे बच्चे शांत बैठ जाते हैं, इजंट इट? हाँ, Yes, तो यही है। See, it only means that fire is very useful as long as it is kept under control। देखो, जब फायर कैसे गुड है, जब इसका क्या है, यूजफुल जब तक आप लोग इनको कंट्रोल में रखोगे। जैसे आप लोग कभी कभी क्या होता है, मम्मी पापा घर पे नहीं रहते हैं तो क्या होता है, आप लोग कुछ बना के खाने के लिए कोशिश करते हो, है ना। म्यूट कर लो बेटा, किसी की आवाज आ रही है। तो ये जो है, कुछ बनाने के लिए गैस में लाइटेड करते हो ना। यदि आपको पता नहीं है कि गैस कैसे जलाते हैं, तो क्या होगा? आप उसको खोल के छोड़ दोगे, फिर कोई आएंगे और मैच स्टिक ये लगाएंगे तो पूरे घर जल जाएगी। होता है ना ऐसा? यस। Yes, ma'am. सो यदि आपको नहीं आता है तो मम्मी पापा से पहले सीखोगे कि हाउ दे आर यूजिंग, है ना। तो उनसे, मम्मी पापा से या तो बड़े भाई बहन से पहले सीखोगे, उसके बाद आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है। अदरवाइज एक के लापरवाही की वजह से पूरे परिवार खत्म, पूरे नष्ट हो जाएगा। सारे प्रॉपर्टी जितने भी आपके कुछ सामान वामान है सारे जल जाएंगे। सो बेटा, जब आप ट्राई करते हो, कुछ बनाने के लिए कोशिश करते हो और आपको लाइट ऑफ करने नहीं आता है, तो प्लीज यू डोंट डू दैट। You call someone and tell them to teach you. Okay, if mommy papas are not at home, then you can call some neighbors and ask them to help you out. समझ में yes, आया? ma'am. ऐसे अकेला बिल्कुल नहीं करना है, Yes, ma'am. ठीक है। So, for instance, we use it to cook our food, warm our homes in winter, and to generate electricity. But on the other hand, if fire gets out of control, it can be very dangerous. Each year, thousands of homes and shops are damaged by fire. देखो, यदि ये फायर कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो क्या होता है? सारी चीज को नुकसान कर लेता है ना, डैमेज कर देता है। हाउसेस हो, बिल्डिंग्स हो, फैक्ट्रीज हो, या तो कोई सभी जगह हो, है ना, कोई सी भी जगह हो। विच प्लेस, व्हाट प्लेस दैट फायर डजंट नो। फायर को पता नहीं चलता है कि यस, दिस इज एक बड़ा सा मॉल है तो यहाँ पे फायर नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे बिग प्लेस है तो फायर नहीं लगेगा, ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। यदि उन लोग केयरलेसनेस करेंगे, केयरलेस हो जाएंगे, फायर को मतलब उतना कंट्रोल में नहीं रखेंगे, तो सारी चीज को नुकसान कर डालेगा। जैसे थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर। अब सारे आप लोग को पता होगा कि दिवाली इस पर का दिवाली आई डोंट नो, बट प्रीवियस जितने भी दिवाली हम मनाए हैं, है ना, उस टाइम में सेकेंड डे न्यूज़पेपर में क्या आता है?
हैव यू एवर रेड अबाउट? यस, पढ़े हो? फायर क्रैकर्स की वजह से क्या होता है, पढ़े हो बच्चे? इस साल Yes, के ma'am. नहीं, हाँ Pollution अभी होता के दिन पोल्यूशन होता तो है, दैट इज ट्रू। पटाखा की वजह से कितने घर जल जाती है, कितने जन के Yes, ma'am. कुछ नुकसान हो जाता है ना। Yes. और Yes, पटाखे की ma'am. वजह से आपके घर पे मतलब लकड़ी उकड़ी है तो वो जल जाता है, तो बहुत सारे ऐसे डैमेज होता है ना बेटा। तो यहाँ पे देखिए कि वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। जैसे है कि क्या है ना, ये मतलब क्रैकर्स की वजह से भी दिवाली के बाद यू विल सी इन द न्यूज़पेपर दैट उस एरिया में आग लग गई ड्यू टू क्रैकर्स, पटाखा के वजह से, है ना। कितने जन के जान चली गई, कोई इंजर्ड हो गए हैं। एक बार मेरे भैया भी ये पटाखा की वजह से पूरे हाथ जला दिए थे, है ना। उनका बहुत मतलब क्या है ना, पटाखा पूरा हाथ में ही फट गया था, तो हाथ पूरा ही, एक हाथ उनका ऐसा हो गया था कि पूरा देखने का लायक नहीं है जैसे। है। तो ये जो है क्रैकर्स भी बहुत डेंजरस है बेटा, यू डोंट चैलेंज इट, ओके। जब क्रैकर्स डालते हो, फटाका डालते हो, तो आपको खुद को संभालना है पहले, उसके बाद ही करना, अदरवाइज यू विल श्योरली यू विल गेट इंजर्ड इफ यू आर केयरलेस। और ऐसा भी हो सकता है कि वो मतलब बहुत सारी चीजों को नुकसान कर देता है, फायर डिस्ट्रॉयड कर देता है। जैसे फॉरेस्ट में भी बहुत सारे, फॉरेस्ट में आग लग जाती है तो क्रीचर्स, छोटा छोटा क्या है, एनिमल्स वगैरह सारे जल जाते हैं, है ना, पेड़ पौधे भी जल जाते हैं। जस्ट एज थ्री थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, देयर आर थ्री मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट। देखो, थ्री थिंग्स हमारा फ्यूल है, ऑक्सीजन और हीट, इनके तीनों को कंबाइन करने के बाद हमारा फायर रिलीज होता है ना। केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो क्या है, फायर रिलीज होता है। Release तो होता है। हाँ, उसी तरह अभी हमको क्या करना है, पुट आउट करने के लिए, पुट आउट मतलब समझते हो बच्चे, आग को बुझाने के लिए, है ना। तो ये थ्री चीज तो आग मतलब बनाने के लिए, टू मेक फायर एंड टू पुट आउट फायर, थ्री थिंग्स है। इन ईच वन ऑफ द थ्री थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। अभी हम देखेंगे कि थ्री थिंग्स क्या है जो कि हम फायर को बुझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक अवे द फ्यूल। पहला थिंग है जो हम फ्यूल को वहां से हटाएंगे। इफ द फायर हैज नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। यदि वहां पे फ्यूल नहीं डालोगे, लकड़ी में भी आप फ्यूल नहीं डालोगे और मैच स्टिक नहीं लगाओगे, तब तक वहां पे फायर नहीं लगेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक आउट दैट फ्यूल को वहां से हटाना है। We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. यदि आपका फ्यूल नहीं डालोगे लकड़ी पे तो फ्यूल बिल्कुल ही नहीं रहेगा, तो आप वहां पे कभी भी आग नहीं लगा सकते हो। यू कैनॉट मेक फायर एनी मोर। सो द सेकेंड वे, फर्स्ट तो फ्यूल को हटाना है, अभी सेकेंड वे हम देखेंगे दूसरा चीज क्या है। The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. Prevent का मतलब क्या होता है, दूर रखना, किसी चीजों को हटाना वहां से। मैम बता, आप एकदम हाँ सेव रखना। हाँ, एकदम उनसे दूर रखना है, ऑक्सीजन को वहां से हटा देना है, ताकि वो फायर मतलब जल नहीं पाएगा, है ना। सेकेंड थिंग, प्रिवेंट ऑक्सीजन, स्टॉप करना है, प्रिवेंट वहां पे स्टॉप करना है, वहां से दूर हटाना है किसको, ऑक्सीजन को। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। जब आप लोग ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करोगे तब तक आपके फायर नहीं जलेगी, या तो जलता हुआ फायर ज्यादा नहीं होगा, धीरे धीरे अपने से मतलब अपने आप क्या होगा, बुझ जाएगी, है ना। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मोल्डर्ड
स्मूथ इट विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक। जैसे छोटा छोटा फायर का मतलब क्या है, थोड़ा फायर लगा होगा आसपास में, तो यू कैन पुट आउट द फायर विथ डैम्प ब्लैंकेट। ब्लैंकेट को गीला करके उसके ऊपर डाल दोगे, या तो सैक को गीला करके उसके ऊपर डालोगे, तो अपने आप वो आग बुझ जाती है। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। और ये क्या है, जो डैम्प ब्लैंकेट होता है वो और सैक होता है, वो ऑक्सीजन पास आउट होने नहीं देता है। जहां तक वो मटेरियल है वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के वजह से वो आग अपने आप बुझ जाती है, नहीं जलती आगे। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विश करता है फायर को, है ना। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो बर्निंग मटेरियल तक ऑक्सीजन को पहुंचने नहीं देता है, अलाउ नहीं करता है, तो पहले ही उसको रोक देता है। तो ये धीरे धीरे अपने आप क्या है, आग बुझने लग जाती है। सेकेंड पॉइंट याद हुआ, क्या चाहिए, ऑक्सीजन मैम को ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को साइड में रखना है ना। फर्स्ट पॉइंट क्या था, मैम फ्यूल को फ्यूल। हटाना है। हाँ, फ्यूल को हटाना है। सेकेंड, ऑक्सीजन को मतलब वहां तक रीच होने के लिए प्रिवेंट करना है। अभी थर्ड थिंग क्या है, देखो, द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट। क्या करना है, रिमूव द हीट, है ना। थर्ड पॉइंट में आप हीट को रिमूव करोगे, हटाओगे वहां से, हीट अप नहीं होने दोगे, उसको कोल्ड करोगे, ठंडा करोगे, तो वो कभी आग नहीं जलेगी। जैसे कि लकड़ी बारिश के टाइम पे, अब गांव में गए होंगे बच्चे तो आपको पता है, बारिश हो जाने के बाद लकड़ी, जितने भी लकड़ी क्या हो, गीला हो जाता है। तो गीला वाले लकड़ी पे, वेट हुए रहता है, उस लकड़ी पे आग जलाओगे तो कभी आसानी से आग नहीं जलती है। पता है क्यों? क्योंकि मैम यस गीली मैम, रहती है। क्योंकि मैम वो गीला होता है मैम, उस पे हीट हाँ जल्दी से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। हाँ, हीट जल्दी से प्रोड्यूस वहां पे नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट इज वेट, है ना। वो सूखा होता, ड्राई होता, तो वहां पे जल्दी से हीटअप हो जाता और फायर कैचअप कर लेता, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट। तो ये हीट को मतलब रिमूव करोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, फायर वो अपने आप बुझ जाती है। इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट किसको बोलते हैं, इन प्रीवियस वी हैव रेड, है ना। यस मैम, वो जो each fuel has its particular temperature ना, and है ना, particular temperature, Yes, and मैम। they release the heat और light, है ना। तो इसी को हम फ्यूल बोलते हैं। तो यह फ्लैश पॉइंट, सॉरी फ्यूल नहीं, फ्लैश पॉइंट,